संत रामपाल जी महाराज एक अजिहे महान संत जिन्हां ने अपनी सत भगती, तत्व ज्ञान, करुणा ਅਤੇ सेवा ਦੇ बल ਤੇ समाज ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਏਡਜ਼ ਆਦਿ ਠੀਕ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਯੂਨਿਟ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਭੈਣ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਦਹੇਜ ਮੁਕਤ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਇਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਉਜੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸੇ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੰਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਫਤ ਭੰਡਾਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਕਦੇ ਹਨ। ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਹੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਭੂਚਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਨ ਬਣਾਈਏ। प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। नमस्कार दर्शकों, इस कहानी को सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी।
आपको मिलवाते हैं मध्य प्रदेश के सागर जिले वीणा में रहने वाले लक्ष्मण जी चौधरी से, जो एड्स, कैंसर, बवासीर जैसी जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे थे। घर में निर्धनता इतनी बढ़ गई कि राशन पानी की दिक्कत से वह आत्महत्या करने को मजबूर हो गए, लेकिन अपने मासूम बच्चों को देखकर रुक जाते। लक्ष्मण जी की आत्मा के अंदर परमात्मा पाने की तलाश थी। एक दिन लक्ष्मण जी की किस्मत ने साथ दिया। उनको एक महान तारणहार संत की जानकारी मिली, लेकिन लक्ष्मण जी के पास वहां जाने का किराया नहीं था। वह संत की परख के लिए मन में परीक्षा लेनी चाहिए कि सच्चे संत होंगे तो आश्रम में जाने के पैसा देंगे। सुबह जब देखा तो जेब में 500 रुपए का नोट पाया। वहीं से लक्ष्मण जी के जीवन में बदलाव आया। तो आइए सुनते हैं लक्ष्मण जी की सच्ची कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? लक्ष्मण चौधरी। सर आप कहाँ से हैं? गांव धनोरा, तहसील बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? सर 18/10/2013 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं शिव जी, दुर्गा जी और कृष्ण और नौ दुर्गा के व्रत रखता था, और हमारे पूर्वजों ने काल भैरव की पूजा होती थी घर में। उसकी 3 साल में बलि चढ़ाई जाती थी मुर्गे की। और भगत जी में ज़्यादा शिव जी और दुर्गा जी को ही मानता था, और नवरात्र के व्रत करने लगा, और कृष्ण भगवान को भी मानता था। बस सर इन्हीं की भक्ति करता था मैं। सर आपने बताया कि आप बहुत सारी भक्ति साधना करते थे, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए? सर इसके पीछे बहुत बड़ा वो है। मैं पहले तो ज़्यादा सर कभी नहीं मानता था इतना भगवानों को। फिर जब मेरे को स्टार्टिंग में एक रोग हुआ, छोटे मेरे शरीर में लिंग में दाने हो गए सर, सफ़ेद सफ़ेद। तो मैं घबरा गया और डॉक्टर अजीत साहब सर के पास गया। तो बोले यार ये कैसे हुआ? मैंने बोला सर अचानक हो गए। तो बोले ठीक है। उनने मेरे ट्रीटमेंट किया, और मैंने कोई ऐसे बाजू खोला कि बाजू खोलो, इंजेक्शन लगाया तो मेरी उल्टी आ गई। ऐसे इंजेक्शन लगाया तो मेरे को कुछ नहीं हुआ। मैं दवा करा के ही आ गया, 8-10 दिन में ठीक हो गया। फिर उसके उपरांत सर 1 महीने बाद मेरे को फिर खुजली चलने लगी। फिर गया तो बोलिए कैसे हो रहा है, कि आप गीले कपड़ा पहन लेते हो? मैंने बोला नहीं सर। तो बोले एक काम करो, इसका लंबा इलाज होगा। तो मैंने फिर मेरे को समझ गया कि एड्स तो नहीं हो गया। फिर मैंने बोला कैसे? फिर उन्होंने देखा तो मेरे शरीर में गड्ढे हो गए, छाले जैसे पूरे। तो मैं तो काँप गया सर। तो जो मैं भक्ति नहीं करता था और उतनी विश्वास नहीं करता था, तो मैं घबरा के बहुत साधना करने लगा कि हे भगवान ये रोग तो आप ही काटना माता। उस दुर्गा जी की भक्ति करने लगा, और बिना नहाए धोए कभी खाना नहीं खाता था, लेकिन वो रोग ठीक नहीं हुए। फिर सर उनने बताया कि तुमको कहीं गलत तो नहीं करते हो? मैंने बोला नहीं सर। बोले हो सकता है तुमको एड्स हो गया हो। मैं घबरा गया सर। फिर इसी उपरांत डॉक्टर ने एड्स घोषित कर दिया। फिर मेरी घबराहट चालू हो गई। फिर इसी उपरांत मैं ट्रीटमेंट कराता रहा, और मैं एमएस के कंपनी में साइट सुपरवाइज़र था। तो मेरा ना नौकरी में मन लगे, और मेरे को 24 घंटा वही रोग दिखे कि मैं ठीक कैसे होगा। मैं नौकरी भी करता रहा। इसी उपरांत मेरे को बवासीर की बीमारी हो गई, और दोनों पैर की नसें चलने लगीं। वो तो गोली खाता था, साथ साथ परहेज का भी खाना खाने लगा सर। हिमालय पायलेक्स गोली लिख दी डॉक्टर साहब ने, वो मैं खाता रहा तो मेरे को कुछ राहत मिली, लेकिन मैं ठीक बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिर इसी उपरांत 1 साल बाद मेरे को टॉन्सर की शिकायत होने लगी। गले में इधर दर्द होने लगा। पीडी साहू बीना में सिटी हॉस्पिटल में वहाँ गया। बोले यही हैं गले के डॉक्टर। मैं गया, बोले आपको तो टॉन्सर हो गए। तो मैंने बोला मैडम मेरे को डर लगा कि कहीं ऑपरेशन हुआ। कहाँ हुआ? इधर। तो मैं डर गया, मैंने कि गर्दन ना कट जाए। मैंने बोला मैडम अभी तो गोली लिख दो, पैसा है नहीं, बाद में करा लेंगे ऑपरेशन। हाँ बोले ठीक है। तो उनने मेरे को 3 महीने की दवा लिख दी। बोले इसको खाओ, अगर बैठ जाएगा तो नहीं होगा। तो भगत जी मैं सीधा अपनी ड्यूटी पे चला गया। ड्यूटी पे मैं अंजार में ड्यूटी कर रहा था। वहाँ मेरे को फिर दिक्कत आने लगी। फिर मैंने क्या किया, मैं वहाँ से भाग आया। फिर मैं नहीं गया नौकरी पे। फिर सर बोला आजा तू इधर आजा पानीपत। फिर सर पानीपत चला गया। तो पानीपत में मैं मंजन कर रहा था, और मैंने ऐसे ब्रश किया जीभी, तो मेरे मुंह से
ब्लड आ गया। मैं तो कब गया भगत जी, खाना पीना सब भूल गया। फिर डॉक्टर के पास गया, बोले तुम्हारे तो टॉन्सर पक गए, इनका तो ऑपरेशन होगा अभी, नहीं तो मर जाओगे। तो मैंने ठीक है मैडम कर दो। तो मैंने जल्दी कर्जा अर्जा उठा के और मैंने ऑपरेशन की तैयारी कर ली और पत्नी का जेवर भी गिरवी रख दिया। जाके मैंने ऑपरेशन कराया और ऑपरेशन कराने के बाद मैं 1 महीना गोली खाया, लेकिन जो गड्ढे थे वो टॉन्सर के जो कटे थे, और जो उनने मेरी गांठें भेजी थी भोपाल कि तुम्हारी ये गांठें जांच होके आएंगी, इसकी भी 1100 जमा कर दो, मैंने वो भी कर दिए। जब वो रिपोर्टें आई और मेरे को बुलाया कि आना, तो मैं गया तो वो मैडम दंग रह गई और उसने कुछ नहीं मुँह से बोली, ना खुशी हुई। और बोले एक काम करो, मैं 2 महीने की आपको दवाई और लिख देती हूँ, इनको खाओ। तो मैं समझ गया कि मेरे को कोई और बीमारी हो गई, ना तो डॉक्टर हंस जाता। तो मैं खाता रहा और मेरे को कोई भी उन 2 महीनों की दवाई से राहत नहीं हुई। तब मैं फिर गया, मैंने कि मैडम मेरे को तो आराम नहीं लग रहा। बोले आपको 1 साल दवाई खाना पड़ेगी। मैंने बोला आप बोल रही थी टॉन्सर तो जल्दी ठीक हो जाते हैं, 8 दिन में घाव भर जाते हैं, इनको तो आपने 6 महीने लगा दिए। बोले अभी और खाना पड़ेगा, तुम्हारे टॉन्सर गल चुके थे। मैं घबरा गया, फिर मेरे मुंह से ब्लेड आया, फिर पहुंचा मैंने मैडम ब्लेड आ रहा है। बोले आप हमसे आराम नहीं लग रहा, बाहर चले जाओ। भगत जी मैं बहुत चिंतित हो गया। मैंने बोला कि भगवान अब क्या होगा, पैसे तो हैं नहीं। मैं फूट फूट के रोने लगा कि क्या होगा बच्चों का, क्या पत्नी क्या होगा। अभी मैं इतना जवान, मैं बच्चों को देख के भगत जी मैं रात में रोता था और बच्चे सब सो जाते। बच्चे एक दिन बोले कि आप क्यों बैठे हो। मैंने बोला कुछ नहीं। बोले आप सो जाओ। बोले ड्यूटी नहीं जा रहे, और ऐसे उदास रहने लगे, सूख गए। और क्या है बताओ। मैं छुपा लिया कि मैं ठीक नहीं हुआ। मैंने बोला क्योंकि मैं मेरे पिताजी से पहले ही परेशान था। मेरे पिताजी शराब की लत के कारण जो ज़मीन बेच दिए थे, और पिताजी शराब भी नहीं छोड़ रहे थे। हमारी 35-40 एकड़ ज़मीन और ट्रैक्टर प्लस बिक गया था। मैं उनसे भी बहुत परेशान था और कोई रिश्तेदार मदद के लिए हमारे लिए तैयार नहीं था। सर जब वो डेली हम लोगों का दुख नहीं देखते थे कि इनके घर में क्या परेशानी है, आटा है या नहीं है, उनको तो शराब चाहिए और शराब पी के डेली आते थे। और जो भी घर में और ज़मीन बची थी शेष, उसको बेच बेच के शराब पी रहे थे। तो जो और 30 एकड़ 35 तो बेच ही चुके थे, ट्रैक्टर भी बेच दिया। और हम बहुत दुखी होने लगे कि अब क्या होगा। इसके उपरांत जब मेरे बवासीर तो था ही, दोनों नसें चलती थीं, और जी एड्स हो गया था, और इसके उपरांत टॉन्सर से कैंसर बन गया। मैं घबरा गया। मैंने बोला अब क्या होगा। फिर मैंने सोचा कि पैसा है नहीं, तो मैंने कुछ बैंकों से उधारी लेना स्टार्ट कर दिया, कर्ज जल्दी ले लिया। और कम नहीं ज़्यादा लेता था कि कितना 1 लाख 2 लाख दे दूँ, कि भरना है नहीं मेरे को तो पता है इस वर्ष मैं मरूंगा। अब इसके उपरांत मेरे को घबराहट भी पैदा हो गई। घबराहट होती तो बीटा जो गोली था 0.05 वो खाता था। वो गोली ना हो तो मेरे को एक दिन नहीं करता था कि अब मर जाऊँ। अगर गोली है तो मैं चल पाता था। अगर कहीं मेरे को पता चल गया कि गोली जेब में नहीं है, समझ लो मेरी तबीयत बिगड़ गई। इतना भय हो गया था। इसके उपरांत क्या हुआ भगत जी, मैं रोता रहा। मैंने बोला चलो अब ट्रेन से कटते हैं। फिर मन में आया कि तू ट्रेन से कट जाएगा तो इन बच्चों का क्या होगा। चल कैंसर ही है तो कितने तो जिएंगे, थोड़ा 2-4 साल और कट जाएंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे। ऐसे मन में मैं जीने लगा। फिर मैंने सोचा कि नाम भी नहीं कमाया मैंने, ऐसे ही मर जाऊंगा। फिर मैंने सबके सहयोग से एक गांव में मड़िया बनवाई। 8 दिन में इतना उतावला हो गया कि बहुत जल्दी बनना चाहिए कि 8 दिन में जीऊँगा नहीं। मैंने अपने गांव में शीतला माता का मंदिर बनवाया सबके सहयोग से। वो 8 दिन में बन के पुताई होके तैयार हो गया। सर इन दुखों से मैं बहुत परेशान हो गया था सर। जैसे मेरी बीमारी थी एड्स, बवासीर, दोनों पैरों की नसें चलना और टॉन्सर से कैंसर होना। फिर मेरे को एक मेरा साला लगता था आगासोद गांव का, वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जा रहा था और मेरे घर पे आया। तो मेरे घर पे एक 10 बाई 10 के कमरे में फ़ोटो लगी थी। जैसे मैं 2 बार सोमनाथ गया था उसकी फ़ोटो, द्वारका गया था उसकी फ़ोटो, भेंट द्वार गया था उसकी फ़ोटो, सुदाम मिलाप गया था उसकी फ़ोटो, नागेश्वर की
4 बार ओमकालेश्वर गया, महाकालेश्वर गया, धुनीबाई दादाजी के यहाँ गया, मैहर गया, इलाहाबाद गया। तो उसने फ़ोटो देख के बोला, जीजा जी तू कहाँ कहाँ की फ़ोटो लगाए हैं। मैंने बोला यार क्या करें। तो वो बोली कि ये तुम्हारे जीजा जी तो अब इसी में लगे रहते हैं, ड्यूटी वूटी जाते नहीं, लेकिन मैं रोक सारे छुपाया था सबको, और जितना और जेवर था प्लस उनको गिरवी रख रख के खा रहा था। इसके उपरांत वो बोला अरे जीजा जी ये सब छोड़ो, तुम सूख रहे हो रहे से हो रहे, कोई लाभ नहीं हो रहे। एक संत रामपाल जी महाराज आए हैं बरवाला में भगवान के रूप में। मैंने बोला अच्छा। किस्मत की बात 500 का नोट एक दिन उसी दिन गिर गया मेरा। मैंने बोला अगर भगवान है और मेरी अच्छी आत्मा है तो मेरा 500 का नोट दे दे, मैं बरवाला पक्का आऊँगा। तो मैंने बोला 2 पैसा टीवी चल रही थी, मैंने सत्संग लगाया, मैंने 2 पैसा अगर भगवान हो तो हाथ में नहीं आया। मैंने बोला ठीक है भगवान, मेरे को नींद नहीं आती थी, नींद की गोली खा लेता हूँ, चलो जेब में दे देना। ऐसे संकल्प लेके सोया। सुबह जब मैं 4 बजे उठा तो मेरे को जेब में 500 का नोट मिला। मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मैं इतना रोया, हे मालिक आपने तो मेरी सुन ली। हमने पत्नी से बोला चलो जल्दी गए घर, हमने हाँ रोटी बनाओ, रोटी बनवा के और हम बस तत्काल बरवाला पहुँचे। फार्म भरवाया, नाम दीक्षा ली, नाम दीक्षा लेके वो मालिक सत्संग कर रहे थे, वो मैं हूँ वहीं जाके बैठ गया। जैसे कि मैं बैठा तो मेरी तबीयत बिगड़ गई आश्रम में, और आश्रम में जैसी मेरी तबीयत बिगड़ी तो वो ना तो बीटा जोली गोली थी घबराहट की, और मैंने बोला कहाँ मौत आई यार बताओ, ना घर का कोई और ना अब तो यहाँ मरेंगे। तो मैंने इतना तो ना जाने उन्हीं ने याद दिलाई संत रामपाल जी महाराज ने। मैंने बोला गुरुजी पूरे घर की जिम्मेदारी आपके हाथ में, अब मैं मर रहा हूँ। इतना ही गुरुजी को याद किया तो गुरुजी आश्रम में आ गए मेरे यहाँ से पास, और मेरे बाल पकड़ लिए, और बाल पकड़ के ऐसे मेरे को खींचा तो 1 क्विंटल जैसे कोई वजन ढोता है ऐसा रुई के समान शरीर हो गया। मैं बिल्कुल इतना खुशी हुआ कि भगवान अब नहीं मरूंगा मैं। मैंने 8 साल से मिर्च नहीं खाई थी। मैं भंडारी में जब गया तो मिर्च राम का अचार का प्रसाद आया, सब्जी मैंने ऐसे खाई जैसे सब्जी खाई, बहुत खाई, और मैं बिल्कुल लगा कि अब नहीं मरूंगा। और मैंने जब वो 1 महीने ही ऐसे मंत्र जाप किए तो पता नहीं चला उस बवासीर का जो नसें चलती थी कि वो कहाँ गई। और धीरे धीरे 1 साल बाद मेरे जो घाव थे, मिर्च तो खाता रहा लेकिन गड्ढे भी दिखे लेकिन मेरे को दर्द ना हो। मैंने बोला बड़ी चलो से दर्द नहीं हो रहा और गड्ढे हैं। भगत जी धीरे 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 मैं बिल्कुल ठीक हो गया। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ संत रामपाल जी की दया से। सर फिर जो मेरे रोग थे, जो एड्स की बीमारी थी गंभीर, इसको सभी को पता है कि बचते नहीं कोई भी। और दूसरी बीमारी है कैंसर, उससे भी कोई नहीं बचता। मैं जब हॉस्पिटल में जाती थी तो एक से एक अपने बेटों को खोया देखते रोते बिलखते देखा है। किसी का पिता मर रहा है, किसी की बेटी मर रही है कैंसर में। तो मैं भी सोचता था कि ऐसे ही मैं मर जाऊंगा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से बिल्कुल मैं ठीक हो गया। और सर एक और मैं बात बताना चाहता हूँ, 2020 में मेरे मामा रिटायर हो गए थे। मैं उनका सामान भरने दमोई जा रहा था। जब मैं उस ड्राइवर ने एक ढाबे पे खड़े करके शराब पी ली। जब उसने शराब पी तो मैंने बोला भैया आपने शराब क्यों पी, मैं शराबियों के संगे नहीं बैठता हूँ, चलो सो। तो इच्छाधारी पे मैंने उसको सुला दिया, और हमारे साथ में मामा का लड़का था। उन दोनों ने क्या चतुराई की, उसने हमारे मामा के लड़के ने बोल दिया कि हमारा जो भाई है ना ये दारू नहीं पीने देता है और बहुत नफरत करता है। जब भगत जी उनने पानी की बोतल में दारू रख ली और 5 घंटा सोते रहे, सुबह उठाया कि चलो सामान भरने चलते हैं, तो सर उनने फिर से दारू पी ली सुबह 5 बजे, और एक 70 की स्पीड पे चल रहे, तो जाके उसने खड़े ट्रक मार दिया। तो हम बिल्कुल बाहर फेंक गए ऐसे, और वो एकदम प्रेस हो गया ट्रक, और वो पूरा ऐसा फंस गया और ड्राइवर बेहोश हो गया। और मैंने बोला बंदी छोड़। फिर क्या हुआ, 5 बजे टहलने के लिए आदमी आ रहे थे कुछ, मैंने उनको चिल्लाया। उनने देखा ट्रक की तरफ कि ये आपका इतना भयानक एक्सीडेंट और आप लोग बोल कैसे रहे, आप तो बिल्कुल पूरे फंसे हो, ये देखो पूरा ट्रक टूट गया और आप लोग जिंदा हो।
बोले आप क्या, किसने बचाया आपको? मैंने बोला हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, हमें उन्हीं ने बचाया। तो हमको जल्दी दमोह रेफ़र किया। दमोह से बोला यहाँ तो ठीक नहीं होगा, आप इनको, तो कोठारी हॉस्पिटल जबलपुर गए हम। वहाँ जब जबलपुर गए तो हमारा ऑपरेशन हुआ, तो बोला ये ऑपरेशन तो इनका सक्सेस नहीं होगा और इनको दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा और आप 5 किलो से ज़्यादा वज़न कभी भी नहीं उठा सकते और आप 6 महीने का बेड रेस्ट लेना। मैं बोला कि मालिक ये तो नरक वाली ज़िंदगी हो गई। मैंने मन ही मन संत रामपाल जी महाराज को याद किया कि हे भगवान, आपने मेरे कैंसर मिटा दिए मालिक, आपने एड्स मिटा दिए मालिक, तो मैं चल नहीं पाऊँगा। मेरे को फिर चिंता बढ़ गई कि भगवान मेरे को ज़मीन तो है नहीं, मैं क्या खिलाऊँगा बच्चों को। भगत जी 1-1.25 लाख रुपया वहाँ मेरा फिर खर्चा हो गया और जैसे ही मैं घर आया तो मेरे पूरे पैरों में राड डली थी ऐसी बिल्कुल स्टील की बर्मे से। तो गांव के देखें तो हैरान रह जाएंगे, वाकई में इसके गुरुजी ने इसको बचा लिया। जब भगत जी 2 महीने हुए तो मैं ऐसे उठा बिस्तर से, मैंने नाम लेके गुरुजी का, तो मैं चक्कर आके गिर पड़ा। मैंने बोला डॉक्टर सही बोल रहा था, आप नहीं चल पाओगे 6 महीने। मैंने फिर याद किया, एक दिन मैं उतर गया बेड से। पत्नी बोली कि क्या कर रहे, तुम्हें तो बच्चों का कोई ख्याल नहीं है, फिर से लगाओगे क्या पैसा? बोल डांटने लगा, हमारा लड़का भी डांटने लगा, पापा तुम्हें पता नहीं कि हम कितने परेशान हैं। मैं चुप रहा। मैंने बोला ठीक है बेटा, मन कर रहा तो उतर गया पलंग से। बोले तुम्हें ध्यान नहीं है। मैं मालिक को याद किया कि मालिक मेरे को चलना है, मैं नहीं रह पाऊंगा, ना मेरी मौत कर दो भगवान। भगत जी, गुरु जी ने मैंने 3 महीना में चला दिया। 3 महीने में फिर चलने लगा। लड़का बोला पापा पैसा नहीं है, अब आप भी काम नहीं कर पा रहे, घर का खर्च में बहुत तकलीफ हो रही है, रिश्तेदार तो कोई दे नहीं रहा है, आप जिस चाय के पीछे चले जाते हो लो टांग टुरवा के वो भी नहीं पूछ रहे। मैंने बोला बेटा भगवान ने मेरे को ज़िंदगी भी दी है तो मालिक तेरी करेगा पूर्ति बेटा। तो मैं ऐसे रोने लगा गुरुजी के यहाँ कि मालिक मैंने बहुत से इंटरव्यू सुने हैं, देखो एक बार पैसे मेरे को भी दिए, दूसरा भी दिए, तो मालिक आज नहीं दोगे क्या मेरे को? तो मेरे लड़का बोला सुबह कि पापा। मैंने हाँ बेटा। बोले 40,000 रुपये आ गए मेरे खाते में। मेरे को तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज तक फ़ोन नहीं आया भगत जी 2020 से कि किसने डाली, वो संत रामपाल जी महाराज ने डाली। और उससे जो मेरी कमियां थीं घर की, उससे ही फिर पूरी हुई। सर ये मेरे रोग थे, जैसे एड्स था मेरे लिए, टॉन्सर से कैंसर हो गया था, बवासीर थी, पथरी थी, और जो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो ये सर मेरी सारी रिपोर्टें हैं, ये देखिए सर, ये सिटी हॉस्पिटल की, और ये JP पंत दिल्ली, ये सारी रिपोर्टें हैं सर मेरी। देखिए सर सारी रिपोर्टें, देखिए सर ये मेरी टॉन्सर की रिपोर्टें हैं। ये देखो सर, ये पूरा मेरा जो इलाज चला था सिटी हॉस्पिटल में। और ये मेरी दिल्ली की रिपोर्टें हैं सर। ये सर दिल्ली की रिपोर्ट है जहाँ मैंने इलाज कराया था कैंसर का। और सर मेरी इसी में जो एड्स की रिपोर्टें हैं, जो पथरी की, बवासीर की, सारी रिपोर्टें हैं सर मेरी। ये सारे जिनसे मैं दुख भोग रहा था सर, सारे रिपोर्टें हैं सर। कोई भी आके मेरा नंबर भी ले सकता है, मेरे गांव भी आ सकता है, मेरे पड़ोसियों से भी पूछ सकता है अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो भाई को कैंसर हो, एड्स हो, बवासीर हो, पथरी हो और कई बीमारी हो जो डॉक्टर बोल दे कि अब हमारे बस का नहीं है, आप जाओ घर सेवा करो, तो उसके लिए हमारे अभी संत रामपाल जी महाराज हैं। और आके उनसे अगर नाम दीक्षा लेगा, भलाई वो बोल दे कि नहीं बच सकते, लेकिन हमारे संत रामपाल जी महाराज की यहाँ वो बिल्कुल ठीक हो सकता है अगर सख्त भक्ति करेगा मर्यादा में, जैसे मैंने की, और जो नियम दिए जाते हैं, तो भी बिल्कुल कभी भी नहीं मर सकता, वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा, चाहे लास्ट स्टेज पे कैंसर भी क्यों ना हो। मैं खुद इतना रोगी था, इतना दुखी था, और शराब से भी दुखी था। मैं खुद शराब पीता था
और मैं गर्व से कहता हूँ कि बिल्कुल आप ठीक हो जाओगे। और मेरे पिताजी की जो लत थी, जो मैं जगह जगह जाके प्रार्थना करता था कि हे भगवान शिव जी इसकी दारू छुड़वा दो, हे इधर, और थारों पे कहूँ आस्था, कहूँ लुटियाई, कोई नहीं सुनी। और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की तस्वीर के आगे प्रार्थना की और पिताजी ने नाम दीक्षा ले ली और उन्हें शराब छोड़ दी और आज भगत हो गए 1 नंबर के। तो आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इन्हें पहचानो, ये शास्त्र अनुकूल साधना दे रहे हैं और जो आज के संत दे रहे हैं ये कोई भी नहीं दे रहे हैं, ना गीताओं के अनुसार ना वेदों के अनुसार भक्ति नहीं बताते। हमारे गुरुजी गीता और शास्त्रों के अनुकूल साधना देते हैं जिससे लाभ होते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेना बिल्कुल सरल है। कई चैनलों पे, टीवी पे आज उनका सत्संग आता है, उधर नीचे पट्टी चलती है और आप उन कांटेक्ट करके आप कहीं भी नामदान डिस्ट्रिक्ट में पता करके और आप नज़दीकी सेंटर से आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अमर करूं सतलोक पठाऊं, अर्थात बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। ठाम मन स्थान, अजर अमर है वो लोक, कभी नाश में नहीं आता, वो सतलोक कहलाता। सत्य माने अविनाशी, शाश्वत, सदा रहने वाला स्थान। वहां ले जाऊंगा तुम्हें, वहां छोड़ दूंगा। तो यहाँ कहते हैं अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर हैं जननी जने नमाए। वो किसी माँ से पैदा नहीं हुए। शब्द रूप शब्द स्वरूप साहेब धनी, शब्द सिंध सब माही। बाहर भीतर रम रहा, जहां तहां सब ठाई। अब जैसे सूर्य एक स्थान पर रहते हुए भी अपना पूरा काम कर रहा है, उसकी उष्णता, उसकी गर्मी मकान के अंदर भी प्रभावित कर रही है। तो इसी प्रकार परमात्मा की शक्ति सब जगह व्यापक है। और परमात्मा सतलोक में रहो और चाहे यहां आ जाओ, वो तो वहीं से अपना सारा संचालन, सब कार्य, सब ब्रह्मांडों का बैलेंस वही बनाए रखता है। तो यहां आए भगवान। जल थल पृथ्वी गगन में, बाहर भीतर एक, ये पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं अवगत पुरुष अलेख। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। सेवक हो के उतरे, एक दास बन के आए यहाँ पर। कबीर दास, कबीर दास एक सिंपल मैन की भूमिका की मालिक ने। सेवक हो के उतरे, उतरे माने सशरीर आए। ये नियम है परमात्मा, सशरीर आता, सशरीर चला जाता है, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाहु। जीव उदाहरण, जीव का उद्धार करने के लिए यहाँ उतरे। अभी आपको बताया था इन पवित्र वेदों में, ऋग्वेद के विषय में जो आपको सभी मंत्र और मंडल और सूक्त बताए, इनमें ये प्रमाण है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है। एक तेजो में लोक है, 100 प्रकाशित पृथ्वी है वो सतलोक। उसके 3 पोर्शन हैं, 3 विभाग हैं। जैसे एक तो दिल्ली का बाहरी क्षेत्र जिसमें गांव हैं, विलेज है। एक फिर उसका शहर
दूसरी सतिथि में दूसरा पोर्शन बाजार है, और तीसरा वो पार्लियामेंट हाउस और प्रधानमंत्री का घर, रेजिडेंस, राष्ट्रपति भवन, ये तीसरा स्थान समझ लो। तो वो परमात्मा ऐसे सतलोक के तीसरे स्थान पर विराजमान है और वहां से गति करके आता है। अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, एक कवियों की तरह आचरण करते हैं। ये वेदों में प्रमाण आपको बहुत बार दिखाया है। और अपने मुख कमल से वो वाणी बोल बोल के लोकोक्तियों के माध्यम से विचार व्यक्त करते हैं, दोहों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से। और जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवियों में से एक कवि भी कहलाते हैं, लेकिन वो होते हैं परमात्मा। और वो तीसरे भवनों ऊपरी तिष्ठति, सब भवनों के ऊपर, भवन के सब लोकों के ऊपर के लोक में बैठा है भगवान। वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको उपदेश देता है, तत्व ज्ञान समझाता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में निष्कर्ष है इसका कि अर्जुन, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, ब्रह्मणे मुखे, जिस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो वाणी अपने मुख कमल से स्वयं आकर बोली है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है। उसके अंदर धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है, और उसको जानकर फिर तो सब पापों से मुक्त हो जाएगा। वो तत्व ज्ञान है, वो खुद बोलता है भगवान। यथार्थ ज्ञान को तत्व ज्ञान कहते हैं। और उस ज्ञान को चौथे जाएंगे 34वें श्लोक में कहा, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनसे प्रार्थना करने से, प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का प्रचार करेंगे, उपदेश करेंगे। तो वो तत्व ज्ञान जो है खुद भगवान आकर बोलते हैं, और उसके अंदर कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान होता है। नहीं तो गीता ज्ञानदाता एक अध्याय और लिखवा देती कि ये तत्व ज्ञान वहां पढ़ ले इसमें, लेकिन गीता और वेदों में, कुरान और पुराणों में, बाइबल में वो तत्व ज्ञान नहीं है। लेकिन जिस सत्र के वो शास्त्र हैं वो इनकम्प्लीट हैं, लेकिन गलत नहीं कह सकते। जैसे एक मैट्रिक का सिलेबस होता है, उसकी बुक्स होती हैं, तो वो बुक्स गलत नहीं होती, लेकिन वो बीए और एमए की नहीं होती, लेकिन उस 10वीं तक की पढ़ी हुई पढ़ाई आगे काम अवश्य आती है। तो इसी प्रकार हमारी सदग्रंथ जो हैं ये सभी अध्यात्म मार्ग को समझने में सहयोगी है, लेकिन यथार्थ ज्ञान परमात्मा ने स्वयं आकर दिया है, वो तत्व ज्ञान। तो यहाँ वही बता रहे हैं गरीबदास साहब जी, सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु, बार बार बलिहारी जाऊं उस परम पिता पे। जीव उदाहरण जगत गुरु वही होता है जो पूरे विश्व को तत्व ज्ञान बतावे। जो अटपट करते हैं, शास्त्र ज्ञान कहते हैं, वो बेशक जगत गुरु लिखे रहें, वो नकली डुप्लीकेट जगत गुरु और सतगुरु हैं। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं, जीव उद्धारने के लिए, हमारा जीवों का उद्धार करने के लिए वो जगत गुरु बन के आए थे परमात्मा 600 वर्ष पहले। और परमात्मा के कबीर साहिब के एक जुल्हा धानक, एक अछूत कहा करते उसको, और 64 लाख शिष्य हो जाना बालकों का खेल नहीं है। आज से 550 पौने 600 वर्ष पहले इस भारतवर्ष में, भारत कहाँ तक था, पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, इराक और ईरान तक भारत था उसमें। और इसमें कितनी आबादी होगी, उसमें मुश्किल से 4 करोड़, और 4 करोड़ आबादी में से 64 लाख से सोना एक जुल्हे के हो सकते हैं? वो जुल्हा हो सकते हैं? वो समर्थ शक्ति थे, जुल्हा कर्म से थे, लेकिन वो परमात्मा थे। और कर्म इसलिए कर रहे थे कि भाई मेरे से निर्धन कोई नहीं, और परमात्मा पाने के लिए सत भक्ति हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, क्योंकि उन्होंने राजाओं को भी दीक्षा दी और सेठों को भी, साहूकारों को भी दीक्षा दी, लेकिन उनको सच्चाई से परिचित कराया कि मोक्ष पाने के लिए ये बकवाद संसारिक छोड़नी पड़ेगी, तभी मुक्त होगी।
तो इसलिए यहाँ गरीबदास जी कहते हैं कि वो दास बन कर उतरे। जैसे रामानंद जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए सतलोक शाश्वत स्थान पर, स्वामी रामानंद जी को फिर वापस छोड़ा, तब कहा था दोहू ठोर है एक तू भया एक से दो। दोहू ठोर है एक तू, ऊपर भी आप ही हो, नीचे भी आप ही हो, और गरीबदास हम कारणे तुम आए हो। मगदो गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है, गरीबदास जी की इसलिए नाम लिया जाता है, जैसे तुलसीदास जी की उन चौपाइयों में उनका नाम तुलसीदास होता है, लेकिन महिमा श्री राम की ही होती है। तो गरीबदास जी चित्रण कर रहे हैं, और रामानंद जी ने जो देखा, जो बोला, जो सोचा, बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप के तुम ही सिरजनहारे। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, जो प्रसंग चल रहा है, काशीपुरी कष्ट किया उतरे अदर अदारे, उतरे अवतरित हुए। किसी माँ के जन्म कबीर परमेश्वर जी ने नहीं लिया। मोमिन को मुजरा हुआ जंगल में दीदार, कोट किरण शशि भान सुध, आसन अधर विमान, और परसत पूर्ण ब्रह्म को ये शीतल पिंड और प्राण। गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकनते, जगर मगर काया करे जैसे दमके पद्म अनंत। काशी उमटी गुल भया उस मोमिन का घर घेरे, कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर, कोई कहे वरुण धर्मराय है, कोई कहते ईसे, 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। भक्ति मुक्ति ले उतरे वो मिटन तीनों ताप, मोमन का डेरा लिया फिर कहे कबीरा बाप। दूध न पीवन अन्न भखे है, ना पालने झूलंत, अधर अमान ध्यान में कमल कला फूलंत। कोई कहे ये छल ईश्वर नहीं, कोई किन्नर कहलाए, कोई कहे ये गण ईश का जो जो मात्र सावे। अब जो भी आके देखे, कोई अपनी अपनी सोच से लड़के की महिमा बता रहा है। कोई कहे ये वरुण है जल का देवता, और कोई कहे ये तो इतना, इसके चेहरे से ऐसी झलक, ऐसी रौनक है कि ये तो ऐसा लगता है कि यहाँ का कोई धर्मराज प्रकट हो गया। अब जिसकी जितनी आत्मा निर्मल थी, भगवान उसा ही दिखे था उसे। कोई कहे ये, कोई कहे ये ईश, ये तो भगवान है, और 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। फिर कहते कोई कहे छल ईश्वर नहीं, कि ईश्वर नहीं है, ये कोई देव है, कोई गण है, कोई किन्नर है, और कोई कहे गण ईश का जो जो मात रिसाए। खलक मुल्क देखण गया ये राजा प्रजा रीत, राजा भी प्रजा भी देखण आए उस परम पिता के छोटे से बच्चे को, इतना सुंदर थे। जम्बू दीप जिहान में वो उतरे शब्द अतीत, इस जम्बू दीप में, इस अपने भारतवर्ष के अंदर वो परमात्मा अवतरित हुए, शब्द रूपी उतरे अविनाशी रूप में। दुनी कहे यो देव है, और देव कहते हैं ईश, ईश कहे पर ब्रह्म है ये पूर्ण विश्व बीस। अब दुनिया का यो देवता दिखे, और देवता कहते हैं ऊपर से कि नहीं ये तो भगवान है। वो किसने भगवान माने हैं? विष्णु जी को देवता, और विष्णु जी कहते हैं नहीं ये तो पूर्ण ब्रह्म है, विश्व बीस, पार ब्रह्म है, पूर्ण विश्व बीस, इसमें कोई शक नहीं। अब फिर क्या बताते हैं,
भक्ति मुक्ति ले उतरे। ओए होए। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 95 के मंत्र 2 में कहा कि वो परमात्मा आके और घूमता फिरता है, चलता फिरता है, एक कवि की तरह आचरण करता हुआ। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 और मंडल 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 का सारांश है कि वो परमात्मा, इसका सारांश है कि वो परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता है, अपने मुख से अपनी वाणी से बोल बोल के ज्ञान सुनाता है, और वो ऐसे गूढ़ मंत्रों को, गुप्त मंत्रों को प्रकट करता है। तो यहाँ गुप्त ज्ञान को और गुप्त मंत्रों को प्रकट करता है। जैसे कबीर साहब ने कहा कि सो हम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छपाए। तो सोहम शब्द आप जी को किसी भी वेद, गीता और पुराणों में नहीं मिलेगा। ये परमात्मा ने आके प्रकट किया। सार नाम अभी तक कति डिस्क्लोज नहीं कर रखा था। सोम सोम तो बहुत से लोग, ये संत भी लागे अनअधिकारी होते हुए भी मंत्र देते रहते हैं। ये है यो, इस मंत्र को ये देने के अधिकारी भी नहीं, इस दास के अतिरिक्त विश्व में नहीं कोई। और वो सार नाम है, वो तो इनका हवा भी नहीं लगन दी दाता ने, वो दास के पास है। इस कंप्लीट कोर्स से ही ट्रीटमेंट होगा। तो क्या बताया है? भक्ति मुक्ति ले उतरे, लेकर अवतरित हुए। भक्ति मुक्ति ले उतरे ये मिटन तीनों ताप, मोमन के डेरा लिया ये कहे कबीरा बाप। एक मुसलमान के मोमिन मुसलमान के घर, दुल्हे के घर वहां रहने लगे और उसको बाप पिताजी कहते हैं, बाबा पापा कहते हैं। दुल्हे नीरू को कहते पिता कहते हैं। दूध न पीवे न अन्न बखे, नहीं पलने झूलनते, अधर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलनते। अब गरीबदास जी कहते हैं ना दूध पीवे ना अन्न खावे, लेकिन और स्वस्थ ऐसे हैं जैसे कमल का फूल होता है। कमल कला फूलंत, कमल का फूल की एक ऐसी परमात्मा ने उसमें शक्ति दी है, ऐसा गुण दिया है कि कमल का फूल किसी सरोवर में हो और वहां कितनी स्पीड से पानी प्रवेश हो जा और वो साथ की साथ बढ़ता चला जाता है। चाहे कितना ही बढ़ जा, कितना ही ऊंचा, वो साथ बढ़ता चला जाएगा, उसको ऊपर ऊपर पहुंच रहेगा ऊपरली सतह पर। तो परमात्मा कहते हैं कि गरीबदास जी कहते हैं परमात्मा ना दूध पीवे ना अन्न खावे और फिर भी स्वस्थ ऐसे न फूल शरीर जैसे स्वस्थ हो, जैसे बच्चा प्रतिदिन किलो दूध पीता हो, 1 किलोग्राम, इतना स्वस्थ शरीर। अब जब नीमा ने देखा कि नीरू ने भी देखा कि ये बालक कुछ खा रहा नहीं, पी रहा नहीं, 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, 10 दिन, 20 दिन और 25वें दिन कति चिंतित हो गए वो। और नीमा ने तो यहाँ तक ठान ली कि हे भगवान शिव, या तो आपने देना नहीं था और परमात्मा दे दिया तो ले रहे हो। अब मैं जीऊं नहीं, इस बच्चे के साथ मरूंगी, अब मैं जी नहीं सकती, इसमें मेरा इतना मोह बन गया, इतनी ममता बन गई है। ये फाइनल फैसला कर लिया था। और अंतर्यामी सामने बालक रूप में लेटे हुए थे, उनको पता था कि आज या बुढ़िया पक्की मरेगी। मैं तो मरूं नहीं, क्यों ये कह रही है कि बालक मरेगा तो मैं भी मरूंगी, पर यह चिंता में मर लेगी। मैं तो मरूं नहीं, पर यह अवश्य मर जाएगी। इसलिए परमात्मा ने कहते करे करावे साइया, मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव के वो आप बगल हो जाए। अब परमात्मा ने रिमोट दबाया, भगवान शंकर का शिवमंडल शिवपुरी में बैठे अपने लोक में, एकदम कसक हुई कि मुझे किसने पुकारा है। बेशक वो मुसलमान बन गए थे, लेकिन अपनी आराधना और अपनी अर्जी भगवान शंकर को ही लगाया करते थे। वैसे तो पुण्यात्माओं धीरे धीरे ज्ञान की रोशनी होगी,
ये पूरा मुसलमान धर्म ही इस शंकर भगवान का पुजारी है, पर ये उसको समझ नहीं पा रहे। और जो इनका जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है वो है ये काल ज्योति निरंजन। इसी ने गीता का ज्ञान दिया, इसी ने वेदों का ज्ञान दिया और इसी ने बाइबल का ज्ञान दिया। और गरीबदास साहिब जी ने कहा कि वही मोहम्मद वही महादेव, वही मोहम्मद वही महादेव, वही आदम वही ब्रह्मा, दास गरीब दूसरा कोई नहीं, देख अपने घर में। अब गरीबदास जी कहते हैं कि तुम अलग अलग समझकर झगड़ रहे हो। वही जैसे ईसा जी आए थे विष्णु जी के लोक तय, और हजरत मोहम्मद जी आए थे भगवान शंकर के लोक तय, और बाबा आदम आए थे ब्रह्मा जी के लोक से। या गरीबदास जी कहते हैं परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से कि वही मोहम्मद वही महादेव, वही आदम वही ब्रह्मा, और दास गरीब दूसरा कोई नहीं, देख अपने घर में। कि आप जी यदि साधना करके देख लोगे, प्रत्येक मानव का शरीर चाहे किसी भी धर्म मजहब से संबंधित है एक जैसा है। उसके अंदर कमल भी एक जैसे हमारे रीढ़ की हड्डी है जो जिसको बैकबोन बोलते हैं, पीछे की जो हड्डी है बैकबोन पिछले की, इसके अंदर की साइड में जैसे बहुत ऐसा स्थान है जिस पर छोटी छोटी सी ऐसे नाभि कमल, नीचे मूल कमल, गुदा से 2 उंगल ऊपर अंदर की तरफ, और उससे 2 उंगल ऊपर लगभग स्वाद कमल है ब्रह्मा जी। जिस मूल कमल में गणेश जी का निवास है, यानी गणेश जी का चैनल समझ लो कि गणेश जी के लोक में जो भी क्रियाएं हो रही हैं आप इस अपने मूल कमल में देख सकते हो। जब आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा, सारी डिश डैश लग जाएंगी, ये दास लगा देगा सारी, और फिर आपके वो चैनल चालू हो जाएंगे। ये तो एक टीवी है शरीर, इसके अंदर चैनल हैं, और जौन सा भी चैनल आप ऑन करोगे चलाना चाहोगे तो वही चलेगा। तो इस प्रकार इसके अंदर सब चैनल हैं। फिर ना भी चैनल है, ना भी कमल। जो मूल कमल है वो गणेश जी के लोक में जो कुछ भी हो रहा है मूल कमल पर देखा जा सकता है। और फिर स्वाद चक्र है जिसमें ब्रह्मा जी का आधिपत्य है। ये ब्रह्मा जी के लोक में जो क्रियाएं हो रही हैं इस चैनल्स के माध्यम से दिखाई देती है, स्वाद चक्र बोलने से। फिर नाभि चक्र है, नाभि कमल चक्र, कमल दल, नाभि कमल, उसके अंदर विष्णु जी के लोक में जो हो रही है क्रियाएं उसका जब ऑन हो जाएगा, इस मंत्रों से हो जाएगा। जो मंत्र हम आपको देते हैं प्रथम मंत्र, इसमें बीच के जो 5 नाम हैं इनसे आपके 5 कमल ऑन हो जाएंगे। लेकिन इन कमलों को देखने की आवश्यकता नहीं है आपको, आप यही मार खा जाते हो कि वो हमारे कमल दिखाओ, चल दिख जाए तो बहुत अच्छा है, कमलों को देखें, उनको देखें। अब देखो पुण्यात्मा, इन कमलों को देख देख कर हमने अपना जीवन नाश कर लिया संख्यों बार। ये ऋषि लोग कौन थे? ये साधना और अभ्यस्त, ये जो समाधिस्थ हो जाते थे 1000 वर्ष तक, ये कैसे हो जाते? और फिर क्या मिला उनको? ये क्या होता है कि किसी भी कमल में आपकी सुरती लगी, वो ऑन हो गया तो उसके अंदर आपकी सुरती पहुंच जाएगी बहुत दूर तक और उस लोक में प्रवेश कर जाएगी। वहां आप जो देखोगे नजारे, जैसे बालक किसी मेले में चला जा, कहीं कोई रीछ नचा रहा है, कोई कहीं पर गा रहा है, कोई भालू, कोई बंदर नचा रहा है, कोई कहीं कुश्ती हो रही है, कहीं कोई गाने गा रहा है, कोई ऐसे ऐसे डुगडुगियां बजा रहा है। तो वो बालक उस मेले में चला गया तो फिर उस मेले में बिचल जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा और पिता जाएगा बिछुड़। तो ऐसे आप बच्चे हो, इस जिस भी कमल में वो ऋषि प्रवेश कर जाता था हजारों वर्षों, तो वो बहुत लंबे क्षेत्र हैं ये, उनमें कहीं नाच देख रहा है, वहाँ अप्सराओं के
कहीं झरने में नहा रहा है, जैसे सपना हो जाता है ना समाधि में, ऐसे चलता है फिर। और जब वो वापस आता है तो फिर वो इतना उसका शरीर जीर्ण शीर्ण हो लेता है, उसमें एक दो सिद्धि आ जाती है, उसके वचन से कोई ऐसी घटना घट जाती है, जनता पीछे लग जाती है, वो प्रभु पाक जाता है, फिर गधा बन जाता है। तो काल ने हमारी यहाँ ऐसे अक्ल मार रखी है। तो ये सब कुछ आपका हो जाएगा, लेकिन इसमें घुसने की आवश्यकता नहीं। जैसे हमने अपनी मंजिल पर पहुंचना है और रास्ते में कहीं कोई कुछ भी हो रहा है, कोई सर्कस है, कोई कुछ और है, कुछ और चलते चलते आप उसकी टिकट लेकर उसमें बढ़ गए सर्कस में, और जाना था अपने विदेश, इतना वो हवाई जहाज निकल जाएगा, वो रह गया वहीं का वहीं। तो आप जी ने जो उद्देश्य है वो टारगेट नहीं भूलना, लेकिन इन कमलों से जो हमने लाभ लेना है वो हम साथ लेते चलेंगे। तो जो दास आपको बताना चाह रहा है, ये कमल है हमारे अंदर। तो कहने का भाव ये इसी प्रकार हृदय कमल है, जिसमें भगवान शंकर के लोक की सारी प्रक्रिया इस चैनल पर दिखाई देंगी। यहाँ कंठ कमल है, इसके पीछे ये रीढ़ की हड्डी के अंदर की साइड में जहाँ से ये बैंड होती है, यहाँ पर इस दुर्गा का कमल है, अष्ट कमल दल यहाँ पर है। ये 16 पंखड़ियों का कमल है, इसको जो है ना ये 5वां कमल है, इसको कंठ कमल कहते हैं, अष्ट कमल नहीं। जैसे एक मूल कमल, फिर स्वाद कमल, चक्कर कहो चाहे कमल कहो, फिर नाभि कमल, विष्णु और लक्ष्मी जी का वहां पर नजारा दिखाई देता है। फिर हृदय कमल इन दोनों सतनों के बीच में, और यहाँ दोनों सतनों के बीच में उधर से ऊपर, यहाँ इसकी रीढ़ की हड्डी पर अंदर की तरफ एक हृदय कमल है, जिसको हृदय कमल कहते हैं, जिसकी 12 पंखड़ी हैं। ये कंठ कमल है, इसमें 16 पंखड़ी हैं और दुर्गा जी का निवास है। तो यहाँ कहना चाहते हैं गरीबदास जी कि वही मोहम्मद, वही महादेव, वही आदम, वही ब्रह्मा, और दास गरीब दूसरा को नहीं, कोई नहीं। देख अपने घर में, यदि आप अपने चैनलों को ऑन कर लोगे, देख के देखो, आप विश्व शिवलोक के अंदर प्रवेश करोगे, आपको वहां बैठे दिखाई देंगे ये मोहम्मद और सारे ये पीर पैगंबर। वहां एक अलग से पितरलोक है, प्रत्येक इस भगवानों की नगरी है, अलग अलग इनके स्थान हैं, इनके लोक हैं, और प्रत्येक में अलग अलग स्वर्ग हैं। स्वर्ग माने रेस्टोरेंट, और अलग अलग उनके पितर स्थान है, गण अलग रहते हैं। ये भूत प्रेत अलग रहते हैं, भूत प्रेत पितरों आदि का वो इकट्ठा ही अक्षेत्र है। तो ये सारे वहां बैठे दिखेंगे तुमने, तब पता चलेगा आप अलग नहीं हो, एक हो। तो यह कहते हैं वही मोहम्मद, वही महादेव, वही आदम, वही ब्रह्मा, दास गरीब दूसरा कोई नहीं। देखा अपने घर में। तो नीमा प्रार्थना कर रही है कि भगवान, या तो पुत्र देना नहीं था, और दे दिया तो मालिक लेना नहीं था, आप इसको लेने जा रहे हो, आपकी दासी साथ मरेगी इस बालक का। जय, ये मर गया। तो परमात्मा ने सोचा कि मैं तो मरूं नहीं, पर ये जरूर मरेगी, इतनी टेंशन ले ली इसने। तब परमात्मा ने भगवान शिव को प्रेरित किया ना, तो वो तो 25 दिन की रोए थी। तब परमात्मा कहते हैं, करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिरधर जीव के वो आप बगल हो जा। वहां वो शिव की पुजारन थी, शिव जी ने भेज दिया, और शिव जी एक साधु रूप बना कर आए फकीर का, और पूछा माई क्यों रो रही हो, क्या बात है, आपने तो बहुत बुरा हाल कर रखा है, क्या बात बेटा बताओ। तो उसने बताया कि महाराज जी मैं महा दुखी हूं, मेरे दुख ने ना सुने, आपके सतर का नहीं है, आप भी दुखी हो जाओगे मुझे दुखिया के दुख न सुनकर। भगवान शिव ने कहा कि माई बेटा, कहते हैं अपना दुख किसी दूसरे को सुना दे तो कुछ हल्का हो जाता है। ठीक है, मैं नहीं कर सकूंगा, कुछ विधि बताऊंगा, हो सके दाव लग जाए तो कर लेना। तो माई ने सोचा ले बता दे महात्मा को, महात्मा में तो शक्ति भी होती है। लेकिन इससे पहले वह सब महात्माओं के पास जा चुकी थी, कोई राहत उनको मिला नहीं था। झाड़ फूक भी करवा लिए थे, सारी टोक टाक भी झाड़ ली थी,
पर उस मालिक का टोक लग गया करे, कोई जंतर मंतर हो सकता था, पर हम ऐसे बच्चे हैं ज्ञान में। तब उस नीमा ने सारी कहानी बताई कि मैं निसंतान थी महाराज। एक दिन मैंने हृदय से अपने भगवान शिव को याद किया था और कमल के फूल पर एक सरोवर के अंदर मुझे ये अनमोल रत्न उन्होंने मुझे दिया था। और अब ये 25 दिन का हो गया, इस ना भोजन खाता है ना दूध पीता है, अब ये मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। और परमात्मा ऐसे स्वस्थ जैसे कमल कला फूलंत, कमल की तरह फूल रहे हैं, फल फूल रहे, बड़े शरीर स्वस्थ हो रहा है, मैच्योर से हो रहे हैं, जैसे नवजात शिशु से थोड़ा बड़ा शरीर हो गया। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਗੋਨਿਆਣਾ। ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਮੈਂ ਸਰਸਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਮੈंने ਅਮਰ ਛਕਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਸਰ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈंने ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਬਾਹ ਅਸੀਂ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੁਬਾਹ, ਦੁਪਹਿਰੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀਗਾ 2018 ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਬਹੁਤ। ਫਿਰ ਆਖਰ 'ਚ ਮੈंने 2020 ਵਿੱਚ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ 70% ਨੰਬਰ ਆਏ, ਫਿਰ +2 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਆਏ ਮੇਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਮਿਲੀ। ਬਹੁਤ 10 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ, 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਉੱਧਰ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸਾਡੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਰਮੈਣੀ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਹੇਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਲੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਹੁਣ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਬਹੁਤ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਜੋ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, TV 'ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਪੀਲੀ ਪੱਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਾਮਦਾਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।